نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقال الله تعالى في كلامه المجيد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. سامعین، علامہ ٹور اینڈ ٹریولز پلوامہ کے آفس سے تمام ہمارے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو پیار بھرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ ٹور اینڈ ٹریولز حج اور عمرہ سروسز دینے کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں سماجی شخصیات ہیں یا دینی شخصیات ہیں جن کے اندر امت کی طلب ہو، ہمارے یوتھ کو ریلیٹڈ جو ہمارے چیلنجز ہیں آج ان کو ریلیٹڈ وہ کوشاں ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ ان کا ازالہ ہو جائے، تو ہم وقتاً فوقتاً آپ کو ایسی شخصیات سے ملاتے رہتے ہیں. تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہمارے آفس میں ایک بہت اہم شخصیت جن کا تعلق پلوامہ سے ہے، پلوامہ کے آؤٹ سکرٹس میں ایک گاؤں درسو سے ہے، اور جنہوں نے نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ اپنے قلم سے، اپنی رائٹنگ سے اپنا لوہا منوایا ہے، اور وہ بھی دعوت دین کو لے کے. ہم اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں راشد النبی خان صاحب کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ منظور صاحب، آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا اور آپ سے بات ہوگی انشاءاللہ. راشد صاحب، اپنے دیکھنے والوں سے آج ہم مخاطب ہیں یہاں علامہ کے آفس سے. تو راشد صاحب، آپ سے بیسک سے سوالات کریں گے تاکہ ہمارا جو پلوامہ ہے یا ہمارا JNK جو ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے کام سے، آپ کا کام کا تعارف ہو جائے، ان کو معلومات ہو جائے کہ راشد صاحب کن چیزوں کو لے کے کوشاں ہیں، کن چیزوں کے لے کے یہ محنت کر رہے ہیں. راشد صاحب، آپ اپنی پرائمری ایجوکیشن کے بارے میں بتائیے کہ آپ نے پرائمری ایجوکیشن یا آپ نے تعلیم کیسے سٹارٹ کی، کہاں سے سٹارٹ کی، اور یہ سفر کب تک جاری رہا؟ جی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میرے سے کام لیا، دین کا کام. تو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو سب سے پہلے میری جو ایجوکیشن ہے یہ پلوامہ میں ہی ہوئی ہے، مین ٹاؤن پلوامہ میں. تو جیسے یہاں پر سکولز تھے ان دنوں، ہولی بلازم پبلک سکول، تو وہاں سے نرسری ٹو 8th میرا اسکولنگ ہوئی. پھر سینٹرل بوائز ہائی اسکول 9th 10th میں نے وہاں سے کیا. پھر ایک پرائیویٹ ہائی سیکنڈری ہے یہاں پر NIET، تو وہ بھی مین ٹاؤن میں ہی ہے، تو وہاں سے میں نے 12th کیا ہے. تو جرنی اچھی رہی. پھر میرا جو کالج رہا وہ SP کالج سری نگر رہا، تو وہاں سے میں نے سائنس اسٹریم میں گریجویشن کی. تو پھر LLB لا میں نے کیا کشمیر یونیورسٹی سے. پھر میں نے IGNOU تھرو ایک کورس کیا ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس، اور میں نے B.Ed بھی کیا فرام یونیورسٹی آف کشمیر. تو یہ میرا سفر ہے ایجوکیشن کا. ماشاءاللہ، بہت خوب. راشد بھائی، سائنس اسٹریم کو لے کے گریجویشن تک اور اس کے بعد LLB میں آنا، خاص کوئی وجہ اس کے لیے؟ جی، پہلے میں سوچتا تھا کہ کوئی ڈائنامک ایک میں اسٹریم لوں. تو پھر سائنس اسٹریم کے بعد میں نے چوز کیا لا کو. تو وہ 3 ایئرس میں نے یونیورسٹی آف کشمیر میں بہت ہی چیرش کیے. بہت سیکھنے کو ملا، کیونکہ جو یہ قانون ہوتا ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے جو انسان کو ایک انٹلیکچوئل بناتی ہے. تو وہاں سے 3 سال میں نے دیے، تو 3 سال میں بہت کچھ سیکھا. تو جرنی اچھی رہی. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو اللہ سبحانہ. ماشاءاللہ. راشد صاحب، آپ نے گورنمنٹ جاب کو پریفر کیوں نہیں کیا؟ آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ایز اے ایجوکیشنسٹ، ایز اے ٹیچر کام کر رہے ہیں، اس کو کیوں پریفر کیا؟ جی، میں آپ سے سب سے پہلے میں بتاؤں کہ میں سول سروس آسپرنٹ تھا. میں IAS کی اور KS کی تیاری کر رہا تھا. تو وہ میری فرسٹ کیریئر چوائس تھی. لیکن پھر اللہ تعالیٰ ایک بندے، ہر ایک انسان میں ایک یونیک ٹیلنٹ ہوتا ہے، ایک یونیکنیس ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہوتی ہے جو اگر وہ تھوڑا ہارڈ ورک اس پہ کرے گا، تھوڑا انویسٹ کرے گا اپنا ٹائم، تو اللہ اس کو نکھارتا ہے. تو میں سول سروس میں تیاری کر رہا تھا IAS کی، لیکن نہیں ہوا ان دنوں. تو پھر میں تھوڑا سوشل میڈیا پہ آیا، تو فیس بک میں نے یوٹیلائز کیا. وہاں پر میں نے جب بہت سارے انٹلیکچوئلز دیکھے، جیسے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرس ہیں، IAS آفیسرز ہیں، KS آفیسرز ہیں، یا دوسرے پروفیسرز ہیں، انٹلیکچوئل طبقہ. تو میں نے کہا، ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے ذہن میں ڈالا کہ ان کو اگر آپ دین کی بات سمجھائیں گے تو کیسا ہوگا. تو ان دنوں میں پوسٹس لکھتا تھا، یہ کرتا تھا، ان کی ایڈیٹنگ،
तो मैसेज आहिस्ता आहिस्ता फैलती गई। तो ये अल्लाह ताला को करना था, लेकिन थोड़ी हार्ड वर्क विल उसने दी है एक इंसान को कि उसका रुझान अगर थोड़ा हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, सिंसियरिटी के तरफ जाए तो फिर अल्लाह ताला ने बहुत से नवाजा। अच्छा राशिद भाई, आप एक एज ए टीचर काम कर रहे हैं, तो टीचिंग लाइफ में आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, तो इन अवार्ड्स के बारे में हमारे सामीन को बताएं। जी, पहले जो लोकल स्कूल्स हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है वहाँ पर जो ये लोकल स्कूल्स होते हैं उनमें इतना एक्सपोजर नहीं होता है, तो मैंने वहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा जोर दिया। फिर उसी जर्नी से लेके कुछ अवार्ड्स भी मिले, कुछ रिकॉग्नाइजेशन मिली एट नेशनल, एट इंटरनेशनल लेवल। तो मैं ये कहूँगा कि पहले मैंने अवार्ड्स के लिए नहीं किया, कि सबसे पहले एक नियत होती है, इंटेंशन होता है, सिंसियरिटी, कि अच्छी तरीके से अपने काम करना है, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं उनको ग्रो करना है। तो लेकिन अब अवार्ड्स मिले तो खुशी होनी चाहिए एक इंसान को, तो अल्लाह ताला ने जब नवाजा तो वो लेना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, और लोगों का भी शुक्र करना चाहिए। तो फिर इसी सिलसिले में बेस्ट टीचर अवार्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ स्कॉलर्स बेंगलोर मिला। तो दूसरा है बेस्ट स्कॉलर अवार्ड JKIFTS, दैट इज एक एसोसिएशन है राइटर्स, कॉलमिस्ट्स, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स की, वो उन्होंने बेस्ट स्कॉलर अवार्ड से मुझे नवाजा। और दूसरा है यूनिक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन यहाँ आई थी इन एसोसिएशन में, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, वहाँ पर ग्लोबल यूथ आइकन अवार्ड मिला। तो फिर जर्नी अच्छी रही। या नोबेल प्राइज टीचर समिट मीट मैंने अटेंड किया, यूडान प्राइज कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की 2021 में, या इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम आया इन द कैटेगरी ऑफ एप्रिसिएशन। तो जर्नी अच्छी रही। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने मुझे इन चीज़ों से नवाजा। तो लोगों का भी मैं शुक्र करता हूँ, क्योंकि जितने भी मेरे से जुड़े उन्होंने सराहा की, उन्होंने एनकरेज किया। तो अच्छा रहा सफ़र। थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। माशाल्लाह, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तो आप शुक्र करते रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी नेमतों में इजाफा करता जाएगा। राशिद भाई, एक और सवाल इस्लाम से रिलेटेड, ये जो हमारे घरों में माहौल होता है, क्या बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड था, क्या आप पे ये असर हुआ कि मुझे बहसियत एक भाई, बहसियत एक मुसलमान ज़िंदगी गुजारनी है, इस्लाम से कैसे वाबस्ता हुए? देखो, जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पर मैं LLB करता था, कानून की तालीम हासिल कर रहा था, तो उतना रुझान नहीं था दीन की तरफ। तो मैं मूवीज़ देखता था, या मतलब म्यूज़िक सुनता था, या फैमिली बैकग्राउंड भी उतना स्ट्रांग नहीं था इस्लामिकली। लेकिन फिर आहिस्ता जब हिदायत अल्लाह ताला किसी को देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो उसी तरीके से फिर मैं उन दिनों क्लीन शेव, जीन्स पहनता था, बहुत सारी चीज़ें करता था, लेकिन कैरेक्टर वाइज बचपन से ही अच्छा था। कैरेक्टर वाइज वो बात शायद अल्लाह को पसंद आई। तो उसी सिलसिले से फिर मैंने ग्रो की, थोड़ा अपनी बियर्ड को, अपीयरेंस को, अप्रोच में एक मुस्लिम बना। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने मुताला भी करना स्टार्ट किया, दीन की तरफ आया। तो जब एप्रिसिएशन भी आई तो इंसान ज़्यादा इनकरेज होता है। तो ऐसे मैंने एकेडमिक डिस्कोर्स ऑफ इस्लाम मतलब प्रोपेगेट किया, तो इसमें वाइडली एप्रिसिएशन आई एट नेशनल, इंटरनेशनल लेवल, ग्लोबली। तो बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह। जज़ाकल्लाह। राशिद भाई, हम आपको एज ए कॉलमिस्ट, एज ए राइटर देखते हैं, तो आप जो आपके आर्टिकल्स पढ़ते रहते थे, तो उसके रिगार्डिंग आपने एक बुक भी रिलीज़ की है, तो उसका नाम सोशल मीडिया पावरफुल प्लेटफॉर्म पर दावा। आपने जो क्रीम तबका है उम्मत का, मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको उसमें एड्रेस किया है। तो इस फील्ड में या उनको एड्रेस करने में क्या आपको कमी दिखती थी कि इस फील्ड में या इन चीज़ों में ज़्यादा रुझान नहीं जाता है जो दावत का काम करते हैं? उसके रिगार्डिंग आप गए, उस बुक को भी माशाल्लाह काफ़ी फेम हासिल हुई, आपको अप्रिशिएशन भी मिली है, तो उस बुक के रिगार्डिंग और ये अपने काम को रिगार्डिंग कुछ बताइए। जी, सबसे पहले मैं आर्टिकल्स लिखता था, जैसे आप जानते हो, मतलब वो लीडिंग न्यूज़पेपर्स जो कश्मीर के हैं वहाँ पर पब्लिश होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कहा कि ये जो आर्टिकल्स इनको मैं थोड़ा प्रिजर्व करूँ इन द फॉर्म ऑफ बुक। तो आइडिया आहिस्ता आहिस्ता आया। तो फिर या फ्रेंड्स ने भी एडवाइस किया कि मतलब ये आप बुक की शक्ल इसको दे दो, क्योंकि ये अच्छे आर्टिकल्स है, अच्छी वर्क है, इनमें अच्छी मैसेज है तो इस्लाम के बारे में। तो मैंने फिर कंपाइल किया बुक में। तो जो यहाँ पर इस्लाम एज ए वे ऑफ लाइफ मैं चाहता था कि हम जो ये ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, खासकर IAS ऑफिसर, केस ऑफिसर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जजेस, प्रोफेसर्स, क्योंकि हमने जो जनरली होता है हमारे से कि हम दीन और दुनिया को अलग करते हैं।
तो मैंने एक सोच दी, नहीं हम दीन दुनिया को भी मतलब चेरिश कर सकते हैं, तो फिर हियर आफ्टर भी अच्छा होगा। तो इसीलिए जिसके पास भी मेरी मैसेज पहुंचती है वो अप्रिशिएट करता है, क्योंकि अनबायस्ड है और अच्छी मैसेज होती है, जो हमारे जो मतलब जो हमारे इथिक्स है, वैल्यूज है, मॉरल्स है, उनको डेवलप करती है। तो सारे तबके इसमें शामिल हुए, खासकर ये जो है इंटेलेक्चुअल तबका हमारा, जो ऑफिसर्स है, क्योंकि जनरली यहाँ पर हम जब कोई एग्जाम क्वालिफाई करते हैं कि वी हैव थिंक दैट वी हैव वन द वर्ल्ड, हमें लगता है कि हमने दुनिया जीती, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लाम इज अ वे ऑफ लाइफ, यही एक जरिया है, मतलब यहाँ से ही हम जाके आगे फिर बढ़ जाते हैं हियर आफ्टर की तरफ, जो यहाँ पर अच्छा करेगा तो व्हाई नॉट, मतलब जो हमारा इस्लाम है इट नीड्स क्रीम ऑफ द सोसाइटी। अगर डॉक्टर होगा, हाफिज कुरान होगा, कितना बेस्ट है। अगर इंजीनियर होगा, फिर उसके पास बीएड होगी अच्छी तरीके से, या आईएएस ऑफिसर जब वो ऑफिस में जाएगा, अगर उसके बीएड होगी, ड्रेसिंग होगी, अपीयरेंस में मुस्लिम होगा, तो एक इंपैक्ट पड़ेगा सोसाइटी पर। ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में कि ज्यादातर हम कहते हैं कि एक्चुअली इस्लाम नीड्स क्रीम। तो अगर आप उस लेवल पे जाएंगे तो आपको एप्रिसिएशन भी मिलेगी, आपका बहुत सारी चीजें होंगी जो आप चेरिश इस दुनिया में भी करोगे, जैसे मैंने किया। जब कहते हैं ना, एक कोड भी है कि टॉप स्लॉट इज ऑलवेज ओपन। जब आप टॉप में कुछ करते हैं तो बहुत सारी, इसीलिए दीन में भी अगर आप टॉप करेंगे, जैसे बहुत सारे दाईज है दुनिया में जो वर्ल्डली मतलब अच्छी मैसेज देते हैं, जिससे प्रमोट होती है गुडनेस, तो इसी तरीके से मैंने लिया, तो सफर अच्छा रहा। माशाल्लाह, बिल्कुल इस्लाम को क्रीम ही चाहिए। जो इंटेलेक्चुअल तबका है तो उसमें ज़्यादातर दीन का रुझान होना ज़्यादा फ़ायदा देते हैं हमारे दीन को, क्योंकि अगर हम पहले बात करें इब्तिदाई जो जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का काम किया था, तो अबू बकर सब उम्मत में सबसे बेस्ट था, सबसे इंटेलेक्चुअल था, उसके बाद उमर, तो इससे इस्लाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो ये थे राशिद भाई हमारे, जिन्होंने अपने जर्नी को लेके, राइटिंग को लेके, टीचर को लेके अपने जो इनका मैसेज था वो हमारे सामीन को बताया। तो राशिद भाई, अलुमा के ऑफिस से यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हो? सबसे पहले मेरा मैसेज यही है कि टेक इस्लाम एज अ वे ऑफ लाइफ एंड इट नीड्स क्रीम ऑफ द सोसाइटी। एंड सेकंड थिंग, प्रोपगेट इस्लाम। अगर आपको एक ही हदीस, एक ही कुरानिक वर्स, एंड प्रोपगेट इन अ बेस्ट मैनर, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, जैसे हम दूसरी चीज़ों को फैलाते हैं, व्हाई नॉट द वन वर्स ऑफ कुरान, वन वर्स ऑफ हदीस, प्रमोट पॉजिटिविटी अमंग सोसाइटी, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं यूथ को ये भी कहूँगा कि दुनिया के पीछे पीछे जब जाते हैं तो कुछ हासिल नहीं होता है, अगर आप दीन के पीछे पीछे जाएंगे आपको दुनिया पीछे पीछे आएगी। सो दैट इज माई मैसेज। एंड डू नॉट टेक सिट्रस, क्योंकि आज के हमारी सोसाइटी में, खासकर इस सोसाइटी में सिट्रस है ज़्यादा, नौजवानों में बहुत सारी वजह है उसमें। सिट्रस नहीं लेना है, दीन की तरफ आओ एंड यू विल फाइंड पीस एंड यू विल चेरिश दिस लाइफ एंड हियर आफ्टर। जज़ाकल्लाह खैर। जी बिल्कुल, दीन हमारे तमाम मसले जो है, मसले जात हैं दुनिया भर के, दीन ही हल है हकीकत में उनका, तमाम मसलों का। क्योंकि अगर दीन से दूरी होगी तो वो इंसान सिट्रस का शिकार होता है, वो बहुत सारी चीज़ों का शिकार होता है। ये थे सामीन राशिदुन नबी। अब आखिर में एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं कि राशिदुन नबी खान जो, जिनका ताल्लुक दुरुस्सु पुलवामा से है, ये इनको आज हम खैर मकदम करते हैं अलुमा टूर एंड ट्रैवल्स में एज ए मेंबर। तो इनका बहुत बहुत खैर मकदम उसके लिए भी, क्योंकि ये आज से हमारे ऑफिशियल मेंबर होंगे। जितनी भी क्वेरीज होगी हमारी हज और उम्रा की, आप राशिद साहब से भी राबिता कर सकते हैं। तो ये था राशिदुन नबी खान के साथ एक मुख्तसर तारुफ उनकी ज़िंदगी को लेके। सो सामीन, जैसा कि आप जानते हैं अलुमा टूर एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज देती है। हमारे यहाँ साल भर हज और उम्रा सर्विसेज की सहूलियात दस्तयाब रहती हैं। जैसा कि आप जानते हैं 7 सितंबर जो हमारा बैच जाने वाला है इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में, करीबी वक्त में, तो उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है कि उसमें 2 सीट्स अभी भी बाकी हैं। जिन हजरात को जाने का शौक हो, जो शौक व ज़ौक़ रखते हो, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। या बाकी महीनों के लिए, जैसे अक्टूबर हो, नवंबर हो, दिसंबर हो, जनवरी हो, हमारे यहाँ बुकिंग स्टार्ट है। आप अपना पासपोर्ट अलुमा के ऑफिस पे ला सकते हैं और यहाँ पे अपना पासपोर्ट बुक कर सकते हैं, अपनी सीट बुक कर सकते हैं, तो ताकि बेहतरीन सहूलियात मिले। जैसे आप जाते हैं, जैसा हमारा एक रुझान है, हमारा की इनिशिएटिव है कि जैसे हमारे हाजी साहिबान होते हैं जो उम्रा पे जाने वाले होते हैं, वो सर्विसेज के बारे में रिगार्डिंग पूछते रहते हैं, लेकिन हम सर्विसेज का ख्याल रखते, साथ साथ सर्विसेज का ख्याल भी रखते हैं। और उनके साथ जो हमारे गाइड हजरात जाते हैं वो बेहतरीन मुअल्लिम हो, वो उनको समझाए, वो जो ताकि उनका जो उम्रा है वो सही गुजरे, ताकि उनके जो अरकान उम्रा है वो सही गुजरे। ये था मैसेज आज का अलुमा ऑफिस से
आपसे मुखातिब होने का। तो बने रहे, जुड़े रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और मज़ीद मिलते हैं इंशाल्लाह एक और नए वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।